Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing matrix and we were doing our last topic of matrix, that is the inverse of a matrix we were doing. We have already done the inverse for 2 by 2 matrix using elementary transformation, using elementary operation. We had already done the inverse of 2 by 2 matrix using row as well as from column. वो हमने कल तक कर रखा है in the previous videos. That thing is there. Now I am coming to today to 3 by 3 matrix. Let us find the inverse of a 3 by 3 matrix. First of all, understand the steps. जैसे 2 by 2 में समझते थे वैसे 3 by 3 में है. Steps क्या है? We are having A, B, C, D, E, F, G, H, I. पहला step I will make this one. First step I will make this one, and then second step will be I will make both these 0 with the help of this one. Both these will be 0 with the help of this one. Then I will make this one. I will make this one, and this both 0 using this one. Then I will make this one, and both these will be made 0 using this. This is the concept I will make. Now let us start. This is the question. I have taken a 3 by 3 matrix. So as I am doing by elementary row transformation, so I have taken A equal to I into A as it was done in 2 by 2 also. 2 by 2 भी तो हमने क्या किया था कि A equal to I है, because I will apply the row operation. The first matrix will be changed. First matrix will be operated via that operation, and second matrix will be remain unchanged. When I will apply column operation, then I will write A into I. A into I, then A will remain unchanged, and I will get changed via those operations. Now we are applying row operation. So first of all, यहाँ पर आना चाहिए 1 और यहाँ पर क्वेश्चन में है ही 1. That means I don't have to divide any number or multiply. I am getting 1. No, that means this step is done. Now what I have to do? I have to do this is 1 3 minus 2 minus 3. So first of all, R2 goes to R2. This is R2 goes to R2 plus 3 times R1. जिसको 0 बनाना है और जिसकी हेल्प से बनाना है उनका साइन ऑपोजिट है, बीच में क्या आएगा प्लस. इन द सेम स्टेप आई विल राइट फॉर R3. तो R3 हेल्प इसी के लिए नहीं है. R3 goes to R3 minus 2 times R1. This is there. R2 goes to R2 plus 3R1. R3 goes to R3 minus 2R1. That will give me R1 remains unchanged. So 1 3 minus 2. Then R2 plus 3R1 minus 3 plus 3 0, जिसके लिए हमने ये किया था. 0 plus 3 into 3 is 0 plus 9. 1 minus 2 into 3 is 1 minus 6 will be minus 5. This will be minus 5. Now I will make 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. Then 1 minus 2 into 3. 1 minus 6 will be minus 5. Then 0 minus minus 2 plus 4. हमें चेकिंग जरूर करनी है क्योंकि अगर एक स्टेप गलत होगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. R2 plus 3R1 minus 3 plus 3 0 0 plus 9 1 minus 6 is minus 5. ठीक है. 2 minus 2 is 0. 1 minus 6 is minus 5. 0 minus minus 2 plus 4. ठीक है. I will apply the same operation here also. So I will get R2 R1 remains unchanged. R2 is 0. 0 plus 3 will be 3. Then 1 plus 3 into 0 is 1. Then 0 plus 3 into 0 will be 0. Now R3 0 minus 2 is minus 2. 0 minus 0 will be 0, and 1 minus 0 into 2 will be 1 multiplied by A. This is I am getting. Now what I have to do? I have to apply the operation what? अब यहाँ पर थोड़ी सी बात सोचने वाली ये है कि अब मुझे इसको 1 बनाना है. I have to make this 1. 1 बनाने के लिए I will divide it by 9. एक तो बिल्कुल ठीक है कि I will divide the row 2 by 9. That means R2 goes to 1 by 9. R2 बिल्कुल करेक्ट है. बट स्पेशली 3 by 3 में हम सोचते हैं कि जैसे मान लो अगर मैंने इसको ये ऑपरेशन लगाया तो ये रो पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी 9 से. और डिवाइड होने के बाद फिर मुझे जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे लगाने पड़ेंगे वो अपॉन वाले में लगाने पड़ेंगे. उससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लस माइनस करना अपॉन वाले में.
तो मैं कोशिश करता हूं ये कि किसी तरीके से कि प्लस या माइनस करने से किसी दूसरे रो में, इस वाली रो किसी प्लस या माइनस करने से किसी दूसरी रो में या तो मुझे +1 मिल जाए या मुझे -1 मिल जाए, ताकि फिर उसको करना आसान हो जाए। जैसे कि भाई एक ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है कि R2 goes to 1 minus R2 कर दो, बिल्कुल करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज R2, तो R2 goes to, जैसे ये 9 है, ये क्या है 9 है, अगर 9 + 10 हो जाए या 9 -10 हो जाए तो 9 - 10 विल गिव मी -1 हियर, और -10 यहां से हो सकता है आसानी से, यहां पे नहीं होगा लेकिन यहां से हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 goes to R2 माइनस नहीं प्लस 2 टाइम्स R3। अगर मैं ऐसा लगाता हूं क्या बनेगा, 9 - 5 × 2, 9 - 10 will be -1। इससे मुझे फायदा होगा, वो कैसा फायदा होगा, ये जो यहाँ पर -5/9 बनता है, यहाँ 3/9 बनता है, यहाँ 1/9 बनता है, यहाँ ऑपरेशन लगते हैं तो अपॉन वाली कैलकुलेशन होती है। इससे फायदा ये होगा, इससे अपॉन में नहीं करना पड़ेगा और ये बन जाएगा -1, और -1 का 1 बनाना आसान है, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो पहले लगाते हैं ये ऑपरेशन, लेट अस अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो आई विल गेट R1 remains unchanged 1 3 -2, देन R2 0, एक बार जो 0 बन गया वो 0 रहेगा, क्योंकि 0 + 2 × 0, 0 + 2 × 0 will be 0, तो यहाँ पर 0 रहेगा। ये हो जाएगा 9 - 10 will be -1, then -5 4 × 2, -5 + 8, -5 + 8 will be 3, then R3 remains unchanged 0 -5 and 4 will be equal to, apply the same operation here, so I will get R2 plus R1 remains unchanged 1 0 0, then 3 2 × -2, 3 - 4 is -1, 1 + 2 × 0 will be 1, 0 + 2 × 1 will be 2, that means -2 0 1 over here multiplied by a। अब यहां पर ये जो -1 है, फटाफट क्या काम करते हैं, अब ये -1 का वर्णन आसान है, क्या कर देंगे, R2 goes to -1 टाइम्स R2, फटाफट करेंगे बन जाएगा 1 3 -2 0 + 1 -3 0 -5 4 is equal to यहां पर क्या हो जाएगा 1 0 0 -1 सॉरी +1 +1 -1 -2 0 1 multiplied by a, ये सारा काम हो चुका है, यहां पे 1 बन चुका है। अब यहां पर लगा देंगे, इन दोनों को बनाएंगे 0 इसकी हेल्प से, इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, तो लो यहां पर ये R1, तो R1 goes to R1 -3 टाइम्स R2 एंड R3 goes to R3 +5 टाइम्स R2, हेल्प R2। जब 0 बनाएंगे इन दोनों को, हेल्प R2 की लेंगे, जब इन दोनों को 0 बनाएंगे हेल्प R1 की ही लेंगे, क्योंकि R1 तो पहले 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इस वाले को बनाएंगे 1, देन इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इस वाले को बनाएंगे 1, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे अगले स्टेप में। तो अब ये बनने के बाद यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन, आई एम गेटिंग व्हाट, R1 पर ऑपरेशन है, तो 1 माइनस ये, तो जब वो जो 1 है ये 0 × 3 will be 1, that will be 1, तो 3 this will be 0। now this -2 -3 × -3, तो -2 + 9, -2 -3 × -3 मतलब -2 + 9 will be 7, then R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, after that this R3 + 5 R2, तो 0 plus this will be 0, -5 + 5 will be 0, 4 -3 × 5, that means 4 - 15, 4 - 15 will be -11 is equal to, अब यहां वाले ऑपरेशन आप खुद लगाना, सेम यू हैव टू यूज दीज 2 ऑपरेशन, अप्लाई हियर, जो आएगा वो आप लोग खुद लिखना, क्योंकि आंसर वहीं से आएगा, दैट यू हैव टू राइट, जो यहां पर ये ऑपरेशन आपको लगाना है यहां पर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑपरेशन लगाने वाले, तो अप्लाई दीज ऑपरेशंस हियर, यू विल गेट अ मैट्रिक्स। नाउ लेट अस रफ दिस, नाउ अब इसके बाद क्या आएगा, नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग, अब मुझे यहां पर बनाना है 1, हियर आई हैव टू मेक 1। अब फिर से बात, अगर मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन में चली जाएगी बात, यहां पर -11, अगर -11 के साथ प्लस का 12 हो जाए, -11 + 12 तो सीधे ही 1 हो जाएगा ये,
अगर -11 के साथ प्लस का 12, और 12 हो सकता है क्योंकि 3 into 4 12 होता है, तो -11 प्लस 12 कैसे बनेगा? ये है R3. इफ आई विल अप्लाई हियर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं R3 goes to R3, माइनस है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्लस का 12, तो माइनस का 4 टाइम्स R2. अगर मैं ये करता हूं, इसको डिवाइड करके 1 बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने 2/2 में कैलकुलेशन कम होती है, 2-3 स्टेप करने होते हैं, हो जाता है अपॉन में. लेकिन इसमें जब अपॉन में चीज जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे, ये अगर ना हो पाए तो डिवाइड कर लेना कि भाई ये जो है, क्या ये इनमें से किसी की हेल्प से, इससे खासकर इसकी हेल्प से क्या ये 1 या -1 बन सकता है? यहां बन रहा है -11 प्लस 12. प्लस 12 के लिए इसको इंटू -4 करना है, और -4 से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हम ऐसा करेंगे R3 में, तो ये कुछ और बन जाएगा. अगर हमने ऐसा किया तो -11 प्लस 12, तो ये तो बन जाएगा 0 -4, तो ये -4 बन जाएगा इससे. ठीक है, फिर गड़बड़ी होगी इसके अंदर. अगर हमने इसमें ऐसा कर दिया R3 goes to R3 -4 R2 कर दिया, तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे पास ये इसमें हो जाएगी गड़बड़ी. ठीक है, तो हम इसके थ्रू नहीं कर सकते, हम इसके थ्रू कर सकते करना होता है, लेकिन यहां पर बात बनेगी. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते ही है. Let us divide it by 11. Let us divide it by 11. What I am doing? I am writing R3 goes to -1 by 11 R3. R3 goes to -1 by 11 R3 करने से क्या बन जाएगा? यहां लिख देते हैं इसको. R3 goes to -1 by 11 R3. ये करते हैं. इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे I will get 10701 -3 001, क्योंकि इसको जब -1/11 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 0 वो 0 रहेगा. अगर मैं उसमें वो ऑपरेशन लगाता तो ये इसके हेल्प से कुछ और बन जाता, फिर उसको 0 बनाना पड़ता, इसलिए वो नहीं लगाया हमने, नहीं लगाया. ठीक है, तो नाउ ये बन गया. ये बनने के बाद अब यहां पर क्या करोगे? ये बन गया इज इक्वल टू में जो यहां पर ऑपरेशन लगाया वो ऑपरेशन यहां पर लगेगा, तो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी वो लिख देना मल्टीप्लाइड बाय ए. अब यहां पर आ जाओ, अब मुझे कुछ नहीं करना. Now what I have to do? I have to make these two. I have to make these two as 0. तो बनाते हैं 0, बहुत आराम से बनेगा. कैसे? R1 goes to R1, जिसको 0 बनाना है, जिसकी हेल्प से बनाना है, उनमें है किसका साइन है? सेम साइन. तो -7 टाइम्स R3, और ऐसी R2 goes to R2 प्लस 3 टाइम्स R3. So that will give me 100010001, और यही सेम ऑपरेशन इस वाले में लग जाएगा, तो दिस विल गिव मी सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए. अब यहां पर बात समझने वाली है. जैसे आई एम गेटिंग आइडेंटिटी हियर, तो यहां पर जो आएगा दिस विल बी ए. और ये हमें करते रहना है साथ साथ. जो ऑपरेशन यहां लग रहा है, ऑपरेशन लगाना इसको देख के, लेकिन लगेगा दोनों में, और आंसर आएगा राइट हैंड साइड से. ये मैंने यहां पर लगाया नहीं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑपरेशन लगाने वाले. ऑपरेशन पता है, लगाना इसको देख के है, लेकिन लगेगा दोनों में, और लगाना कैसे वो हमें आता है. तो हाउ टू अप्लाई द ऑपरेशन? अप्लाई दीस टू ऑपरेशंस हियर, यू विल गेट दिस. देन अप्लाई this operation in this, you will get this matrix. Then apply these two operations here, you will get the answer. When you will get INT here, you will get the answer. This is the answer of this question जो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा. So this is the inverse of a 3/3 matrix using elementary operation. Using elementary operation, इसमें मैंने रो से किया है. This is रो. अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है इसके अंदर. तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि सपोज करो मेरे पास जो क्वेश्चन मिला, बेटा वो कैसा मिला? ये मिला क्वेश्चन आई एम गेटिंग इज 0 0 1 2 1 2 3 3 1 1. दिस इज द क्वेश्चन. अब जब इसका इनवर्स निकालना है तो देन आई विल राइट दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय ए. तो सबसे पहला काम यहां पर, ये जब अगर पहला एलिमेंट 0 मिल गया, मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या है? इंटरचेंज ऑफ रो, जो हमने 2/2 में किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल इंटरचेंज R1 विद R2. तो दैट विल गिव मी 1 2 3 0 1 2
3 1 1। उसके बाद आई विल प्रोसीड द क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया हुआ है। अब कुछ नहीं करना, आई विल मेक दीज टू 0 विद द हेल्प ऑफ दिस वन। यहाँ पहले से ही 1 आ गया, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो जो जाता फिर उसको पहले 1 बनाते, कुछ और मान लो यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पे 2 पहुंचता, फिर 2 को पहले 1 बनाते एंड देन उसके बाद फिर उन दोनों को 0। उसके बाद यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स। यू हैव टू अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पहले से सीखा हुआ है सारा। उसके बाद पता है ये दो बनाएंगे, फिर इसको 1 बना देंगे, फिर इन दोनों को 0 बना देंगे इसकी हेल्प से, फिर इसको 1, फिर इन दोनों को बना देंगे 0 इसकी हेल्प से। तो जो यहां पर आंसर आएगा, यहां जो आएगा दैट विल बी आंसर। तो मेन बात यह है कि जहां पर, अच्छा हो सकता है कोई क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 0 बनाते समय पूरी की पूरी रो 0 बन जाए, यहां पर कुछ भी आए, ऐसा अगर हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे उसको। और हो सकता है कि तुमने मान लो यहां पर जब तीसरे स्टेप पे आए, यहां पर आया 1, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0, यहां पर आया 2, यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 0, 9 1 7। मान लो किसी क्वेश्चन में जब तुमने 2 0 इसको 1 बनाया, पहला स्टेप खत्म, फिर इन दोनों को 0 बना दिया, और जब इसका नंबर आया 1 बनाने का तो यहां पर 0 आ गया। अगर ऐसा हो गया दैट मींस जो पॉसिबिलिटी यहां पर फर्स्ट केस में आ गई थी पहले स्टेप में, वो पॉसिबिलिटी मान लो ये 2 0 बनाने के बाद आई, जहां पर 1 चाहिए वहां पर क्या आ गया 0, तो फिर से इंटरचेंज करेंगे। यहां पर करा था R1 को R2 से, यहां पर करेंगे R2 इंटरचेंज टू R3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 2 9 0 4 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 0 1 नीचे पहुंच जाएगा। अब यहां पर ये 4 है, मेक दिस 1, और ये तो पहले 0 बन गया, अब इसको 0 बना लेंगे इसकी हेल्प से। इन दोनों को इंटरचेंज मत करना, क्योंकि अगर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये वाला 1 नीचे पहुंच जाएगा और हमें चाहिए यहां पर 0। क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि जब यहां की नौबत आई है तो क्यों आई है, क्योंकि हमने यहां पर 0 बनाया है। जब यहां पर दोनों पर 0 है तो इसको इंटरचेंज करने पर 0 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, 0 का 0 रहेगा, और यहां पर ये नीचे ये ऊपर, तो यहां पर एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, जैसे कि आ गया, देन विल मेक इट 1, देन द फॉलो द प्रोसीजर। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट यहां पर 0 आता है, यहां पर कुछ है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। किसी क्वेश्चन में यहां पर 0 आता है ऐसे, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, जब इसकी 1 की जरूरत पड़ेगी तो ये बात भी बताने वाली थी इसके अंदर। तो नाउ आई थिंक वी हैव डन द इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स आल्सो बाय रो। सेम फॉर कॉलम वाइज, जैसे हमने 2x2 में किया था वैसे कॉलम में कॉलम वाइज कर लेंगे, अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशन, जैसे हमने 2x2 में किया था। तो इन दिस वे ये टॉपिक जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वाला खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं बताने के लिए, सारी बातें डिस्कस्ड है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।